नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. So happy Ekadashi to all of you. So we'll start with 1.4 to sloka. So now Mr. Prabhu will be back by tomorrow. Okay. So just you're able to see the screen? Yes, Mataji. So repeat this. Dosharete kulajnanam. Kulagyanam. Varna shankara karakai. Sadhyante jati dharma. Utsadyante jati dharma. Kula dharmascha shashvataha. Dharmascha sasvataha. We'll see the same ones. Doshe. By such faults. Etai. All these. Kulajnanam. Of the destroyers of the family. Varna shankara. Of unwanted children. Karakai. Which are causes. Utsadyante. Are devastated. Jati dharmaha. Community projects. Kula dharmaha. Family traditions. Cha. Also. Shashvata. Eternal. Translation. By the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kind of community projects and family welfare activities are devastated. Hare Krishna Mani Jain Mataji. Hare Krishna Mataji. Mataji to roka. Yes. Purport by Srila Prabhupada ki jai. Community projects for the four orders of human society combined with family welfare activities as they are set forth by the institution of Sanatana Dharma or Varnashram Dharma are designed to enable the human being to attain his ultimate salvation. Therefore, the breaking of the Sanatana Dharma tradition by irresponsible leaders of society brings about chaos in that society, and consequently people forget the aim of life, Vishnu. Such leaders are called blind, and persons who follow such leaders are sure to be led into chaos. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. I will do one more sloka. 1.43. Utsanna kula dharmanam. Utsanna kula dharmanam. I'll unmute everyone. Utsanna kula dharmanam. Utsanna kula dharmanam. Manushyanam janardana. Janardana. Arage niyatam vaso. Bhavatiti anusushruma. Anushruma. Utsanna. Spoiled. Kula dharmana. Of those who have the family traditions. Manushyanam. Of such men. Janardana. O Krishna. Narake. In hell. Niyatam. Always. Vasaha. Residence. Bhavati. It so becomes. Iti. Thus. Anushruma. I have heard by disciplic succession. Translation. O Krishna, maintainer of the people, I have heard by disciplic succession that those whose family traditions are destroyed
dwell always in hell. Yes, Aishi, want to read the purport? Hare Krishna Mataji. Any voice is coming from background, Mataji? No, you say, you tell. Okay, Mataji. Arjuna bases his argument not on his own personal experience, but on what he has heard from the authorities. That is the way of receiving real knowledge. One cannot reach the real point of factual knowledge without being helped by the right person who is already established in that knowledge. There is a system in the Varnashrama institution by which before that one has to undergo the process of atonement for his sinful activities. One who is always engaged in sinful activities must utilize the process of atonement called Prayaschitta. Without doing so, one surely will be transferred to hellish planet to undergo miserable lives as the result of sinful activities. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, thank you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we'll see Bhagavad Gita, chapter 1, sloka 42. Dosharetai kulatnanam varnashangara karake utsadyante jadi dharma kula dharmascha shashvataha. By the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kind of community projects and welfare activities are devastated. तो हमने देखा कि अर्जुना का एक कारण है कि फैमिली ट्रेडिशंस डिस्ट्रॉय होगा ना, तो वर्ण शंकरा हो जाएगा. सो वर्ण शंकरा मीन्स व्हाट? मिक्सिंग. तो प्रीवियस श्लोका में वो उधर बोल रहा था कि क्योंकि आदमी लोग मर जाएगा तो क्या होगा, females in the family, no mixing of the population will happen. फिर वर्ण शंकरा, unwanted progeny will be born. तो वो एक कारण था अर्जुन का कि मैं युद्ध नहीं करेगा. तो इसलिए इधर प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम धर्म के बारे में बोल रहा. सो वर्ण और आश्रम, तो 4 वर्ण है, 4 आश्रम है. तो कौन सा 4 वर्ण है और 4 आश्रम कौन सा है? मैं अनम्यूट किया है सबको. कौन सा है 4 वर्ण 4 आश्रम? वर्ण और आश्रम. वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य and शूद्र, the varnas. ये है वर्ण. और आश्रम? ब्रह्मचारी, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम. ओके, सो ये है वर्ण और आश्रम. तो इसका मतलब नहीं है कि आप एक ब्राह्मण का बेटा बन के पैदा हुआ, इसका मतलब नहीं है आप ब्राह्मण बन गया, है ना. गुणा कर्म विभागशा, कृष्ण ने बोला कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशा, बेस्ड ऑन योर कर्म और गुणा क्वालिटी. सो ऐसा सोचो कि एक बड़ा डॉक्टर है और उनका बेटा डॉक्टर बनाएगा, ऐसा नहीं है ना. वो उनको कॉलेज में पढ़ना है और एंट्रेंस क्लियर करना है, एमबीबीएस करना है, कॉलेज जाना है, फिर डिग्री पास करना है, फिर वो डॉक्टर बन सकते हैं. हाँ, ये है कि उनको चांस है, ज्यादा चांस है डॉक्टर बनने का, क्योंकि वो डॉक्टर का बेटा है. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो डॉक्टर का बेटा बन के पैदा हुआ वो भी डॉक्टर है, ऐसा नहीं है. ट्रेनिंग एंड अंडरगो करना है. इसी तरह एक ब्राह्मण का बेटा सिर्फ पैदा होना में ब्राह्मण नहीं होता है. प्रभुपाद जी ने बोला कलो शूद्र संभवा, कलयुग में सभी शूद्र है, ठीक है. बट बिकॉज हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है, 4 यम नियम पालन नहीं करता है, तो ये सब है. तो अतुल कृष्ण प्रभु जी ने एक बार बोला, अगर आपको पता चलना है कि एक ब्राह्मण है, उनका घर जाके उनका फ्रिज खोलना, मतलब मांस आहार सब कुछ होगा. आजकल ऐसा है. तो कृष्ण ने बोला कि गुणा और कर्म के अनुसार वर्ण है. ब्राह्मण का काम क्या है? वेद पढ़ना, सबको वेद सिखाना, ये है ब्राह्मण, सत्वगुण में है. और क्षत्रिय रजोगुण में है. मतलब क्षत्रिय क्या करना है? वो अपना कंट्री को प्रोटेक्ट करना है ना. अगर कोई युद्ध करने के लिए आएगा तो उनको फाइट करना है. और वैश्य क्या क्या करना है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, मतलब कृषि करना है, मतलब एग्रीकल्चर, गोरक्षा काउ प्रोटेक्शन, और वाणिज्य बिजनेस ट्रेड कर सकते हैं. और शूद्र लोग सबको हेल्प करना है, मदद करना है सबका. तो आश्रम क्या क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्था, वानप्रस्था और सन्यासी. ब्रह्मचारी होता है मतलब 25 ईयर्स तक, हाँ, 25 साल तक ब्रह्मचारी लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है. तो उसके बाद
अगर उनको चाहिए, वो चाहिए तो शादी कर सकता है, नहीं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह सकता है। सो दैट इज अप टू देम, मतलब वो क्या चाहते हैं ऐसा। और गृहस्था, गृहस्था मतलब गृहस्था दो तरफ का होता है, गृहमेदी और गृहस्था आश्रम। गृहमेदी क्या होता है, सिर्फ अपना इंद्रिय संतृप्ति के लिए जी रहा है, कोई भक्ति कुछ नहीं है उस घर में। बट गृह आश्रम ऐसा होता है कि कृष्ण है, भगवान है, टीटी है, उनका भोग लगाता है, प्रसाद खाता है, सभी जब करता है, मतलब कृष्ण उनके सेंटर में है, तो वो है गृहस्थ आश्रम। तो नेक्स्ट है वानप्रस्थ। अगर आपको 50 साल हो गया तो हस्बैंड वाइफ क्या होता है, क्या करता है, वो फैमिली सबको छोड़ के वृंदावन ऐसे ऐसी तरह का जाके, अगर दे कैन टेक दियर वाइफ और दे गो विदाउट दियर वाइफ, सो वानप्रस्थ ऐसा होता है। देन संन्यास, ओके, दैट इज संन्यास लेते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये चारों आश्रम में गया था, मतलब Prabhupada ji was a brahmachari before 22, then he got married, he was in a grihastha life, वाइफ और बच्चे लोग था, और उसके बाद वो वानप्रस्थ लेके वृंदावन गया और फिर संन्यास भी ले लिया। सो प्रभुपाद जी ने बोला अगर आप ब्रह्मचारी बन जाओ, नहीं तो गृहस्था, बीच में नहीं रहने का। यह है ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। ब्रह्मास्त्र बहुत डेंजरस होता है, मतलब आश्रम क्या सेलेक्ट किया आपने, वो आश्रम में रहना है। ये ऐसा नहीं है कि मैं गृहस्था हूँ, मेरा बच्चा है, पति पत्नी सब है, तो इसलिए मैं भक्ति नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का सारा ऑलमोस्ट 90% एसोसिएट्स पूरा गृहस्था था, अर्जुन भी गृहस्था है। तो ऐसा नहीं है कि आप गृहस्थ है तो आपको भक्ति में बढ़ने का प्रॉब्लम है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी गृहस्थ आश्रम में भी अच्छा सा भक्ति कर सकता है, ठीक है। तो दैट्स आवर कॉन्शियसनेस देखना है। सो व्हाट इज द यूज, ये वर्णाश्रम धर्म भगवान ने क्यों क्रिएट किया, क्योंकि एनेबल द ह्यूमन बीइंग टू अटेन अल्टीमेट सैल्वेशन, मोक्ष देने के लिए। क्योंकि हमको कृष्ण भगवान को बीच में रखना है हमारे लाइफ में। मतलब सुबह सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वी हैव टू अटेंड मंगलारती, और जब करना है 16 माला जब करेगा, उसके बाद भोग बनाएगा, है ना। व्हाट इज द थॉट, ये ऐसा नहीं कि मुझे आज पनीर खाना है, डोसा खाना है, नहीं, भगवान को क्या ऑफर करता है वो शुड बी योर कॉन्शियसनेस। और आप नहा के किचन जाना है, और उसके बाद भगवान को क्या क्या पसंद है वो बना के भगवान को ऑफर करना है। फिर प्रसाद खा सकते हैं पूरा फैमिली के साथ, फिर भगवत गीता सुन सकते हैं। तो ये ऐसा करने में क्या होगा, हमारा मोक्ष प्राप्ति के मतलब रास्ता खुलेगा। तो दिस इज द थिंग। एंड प्रभुपाद जी ने बोला अगर अभी आपका हमारा पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा इररिस्पॉन्सिबल है कि हमने हमारा एम ऑफ लाइफ फॉरगेट किया, हमको पता नहीं है कि हमारा एम क्या है लाइफ में, का लाइफ का गोल क्या है पता नहीं है, और लाइफ गोल क्या है, विष्णु संसिद्धिम हरितोषणम। हमारा एम तो वापस लिबरेशन और वापस गोलोक में जाने का, बट लीडर्स आर ब्लाइंड। तो मैंने ये बोला था, अंधा यदांदेर उपरीयमाना नते तू स्वार्थ गदिम ही विष्णु दुराश्रयाये बहिरतमानिना अंधा यदांदेर बहिर उपरीयमाना ते अपि सितंत्रम उरिताम निबंधा। तो एक ब्लाइंड विल लीड द ब्लाइंड, मतलब आजकल का लीडर्स कैसा होता है, वो कृष्णा कॉन्शियस में नहीं है, तो इसलिए सिर्फ इंद्रिय संतृप्ति करते हैं, और आप लोग को भी ऐसे ही बनाएगा। तो हम वो लोग को फॉलो करने में हम भी हमारा लाइफ के एम तो भूल जाएगा। तो इसलिए बोला कि महाजन गतस्स पंथा, हमको महाजन के रास्ता फॉलो करना है। कौन कौन है महाजन, 12 महाजन लोग है ना, पता है कौन कौन है? जनक महाराज, बलि महाराज, फिर भीष्म पितामह और प्रहलाद, गुड, फिर यस हाँ द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य नहीं, भीष्माचार्य है। अश्वत्थामा हु? अश्वत्थामा माताजी नो नो नो, यमराज। अजामिल माताजी, अजामिल माताजी, नो, 12 महाजन। माताजी प्रहलाद महाराज। प्रहलाद, वेरी गुड, प्रहलाद। स्वयंभू स्वयंभू, that's it, स्वयंभू ब्रह्मा, नारद, शिवा शिवा, कंफ्यूज महाराज माताजी। कुमाराज, हाँ, व्यासदेव। व्यासदेव, व्यासदेव गोस्वामी है, हाँ व्यासदेव गोस्वामी। हाँ। तो ये श्लोक बोलता है,
Swayambhu Narada Shambhu Kumara Kapilo Manu Prahlado Janaka Bhishma Bali Vaiyasakir Vayam 12 लोग हो गया. Swayambhu Narada Shambhu. Swayambhu मतलब Brahma. Then Narada. Shambhu is Shiva. Prahlado Janaka Bhishma. और कुमारा कपिलो मनु. बलि वैयासकिर वयम. बलि महाराज और सुखदेव गोस्वामी और यमराज. तो ये लोग हैं महाजन. इवन प्रहलाद महाजन है. श्री श्री राधा गोविंद की जय. गवर्नमेंट की जय. तो ये लोगों को हमने फॉलो करना है. महाजनी ना गतस्य पंथा. अगर हम इसलिए हम भागवत पढ़ता है. क्यों हम भागवत पढ़ता है रोज नित्यम भागवत सेवया? क्योंकि हमको इन लोगों के लाइफ में लाइक प्रहलाद महाराज के 7th कैंटो आप पढ़ लिया तो ऐसा नहीं है एक स्टोरी है. नहीं, भागवत में हमारे लिए लाइफ लेसन होता है कि प्रहलाद कितना टॉर्चर सफर किया. मतलब उनके पिता किया क्या टॉर्चर दिया, फिर भी वो भक्ति नहीं छोड़ा. हमारा क्या है, कुछ भी थोड़ा छोटा प्रॉब्लम है तो पहला क्या छोड़ते हैं हम? जबा छोड़ते हैं. आज तो टाइम नहीं है ना जबा. आज तो खाना खाया, हाँ, सोया, हाँ, बट जबा कल भी कर सकते हैं. कल भी खाना खा सकते हैं, कल भी सो सकते हैं. तो पहला हम क्या करते हैं, जपा हमारे साइड में रखता है या क्लास साइड में रखता है. मतलब भागवत पढ़ना, भगवत गीता कल भी कर सकते हैं ऐसा ना. पहला हमें ऐसा करते हैं. बट प्रहलाद महाराज ने क्या किया, इतना प्रॉब्लम्स हो गया, खुद अपना पिता मतलब एनिमी बन गया. प्रभुपाद जी ने बोल रहा कि तालपरी में अगर आप कृष्णा भक्त बन गया तो आपका सारा एनिमीज ही होगा, पूरा शत्रु लोग होगा. प्रहलाद एक एग्जाम्पल है. तो ये महाजन का मतलब उनका जिंदगी से हम लेसन सीखना है हमारा लाइफ में. तो 2nd श्लोका में प्रभुपाद जी ने बोला कि कृष्णा इज द मेंटेनर. हाँ, एको बहुनाम यो विदितादि कामा. कृष्णा इज मेंटेनिंग एवरीवन. एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट what is the real way of receiving knowledge? Hearing from the authorities. ठीक है, सुनना है, श्रुति प्रमाण है. भगवत गीता भागवतम क्या होता है? श्रुति प्रमाण है. मतलब हमको सुनना है क्या है आए. सो अथॉरिटी से, करेक्ट सोर्स से. डिसाइप्लिक सक्सेशन मतलब क्या है? डिसाइप्लिक सक्सेशन मीन्स व्हाट? एनी आइडिया? व्हाट इज डिसाइप्लिक सक्सेशन? Guru Parampara. परंपरा. Yeah, disciplic succession means bona fide spiritual master. वो गुरु परंपरा होना चाहिए. तो you have to hear from disciplic succession. अगर आपको एक गुरु चाहिए तो आपको ये देखना है कि उनका गुरु कौन है, उनका गुरु कौन है, परम गुरु कौन है. और ये हमारा मतलब संप्रदाय में आता है. 4 संप्रदाय है ना, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय. सो संप्रदाय में आता है और लास्ट में कृष्ण से कनेक्ट होता है. तो ये देखना है. डिसाइप्लिक सक्सेशन बहुत मतलब बड़े बात है कि आपको देखना है कि आपका गुरु डिसाइप्लिक सक्सेशन में आता है या नहीं. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गेट फ्रॉम द राइट पर्सन. ओके, दिस इज द इंस्टीट्यूशन दैट इज देयर. एंड इसलिए इधर बोला कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अटॉर्नमेंट फॉर सिंफुल एक्टिविटीज. लाइक हम एक सिन किया, पाप किया, तो उसका प्रायश्चित करना है. अटॉर्नमेंट मतलब प्रायश्चित. ठीक है, तो प्रायश्चित्ता, the process of atonement is called प्रायश्चित्ता. तो अगर आप मंडे से सैटरडे तक पाप किया और संडे आप मंदिर जाके या चर्च जाके कन्फेस किया कि मैंने ये पाप किया, फिर दूसरे दिन से फिर से पाप करना शुरू किया, तो ये अच्छा है? नहीं. प्रभुपाद जी ने बोला ये ऐसा क्या है कि हाथी तब नहाता है. देखा हाथी कितना बार मतलब इतना टाइम लेता है कि पूरा पानी डाल के बहुत अच्छा सा नहाए. और लैंड आके क्या करेगा? हाँ, मिट्टी डालता है. इसी तरह है प्रायश्चित्त. मतलब हम सिन करते हैं, मतलब पाप करता है, फिर मंदिर जाके बोलता है कि हम ये पाप किया, कल से मैं नहीं करेगा, कल से शुरू करेगा फिर से पाप करना. तो ये अच्छी तरह का प्रायश्चित नहीं है. हाँ, दिस इज कॉल्ड कुंजक शौचा, लाइक एलिफेंट टेकिंग बाथ. तो हमको क्या करना है? चांटिंग द होली नेम, हरे कृष्ण मंत्र जब किया तो आपका पूरा बोला ना, हम तो हम सर्व पापी पे. कृष्ण सारा पाप लेता है. सिर्फ पाप लेता है कृष्णा? सिर्फ पाप ही लेता है और कुछ लेता है हमारा कर्म में? Does he take only sinful activities, reactions?
ओनली पापा he'll take माता जी सेवा भी लेते हैं। पुण्य, पुण्य को क्या होता है फिर? पुण्य, पुण्य, what about punya? Will Krishna take away the punya also? Yes or no? Yes, Mataji. Yes na, नहीं तो Yes, Auntie. yeah, otherwise you will have rebirth. Just imagine कृष्णा आपका सिर्फ पाप ले लिया तो सिर्फ पुण्य है आपके जिंदगी में, तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा ना वो पुण्य का एंजॉय करने के लिए, नहीं तो वो आप स्वर्ग लोग भी जा सकता है। फिर भी श्रीने पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति आप सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाप लेता है कृष्णा, पुण्य भी लेता है। पुण्य उतना अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है। हमने सोचा कि सिर्फ मुझे पुण्य करना है, पाप नहीं करना है, तो सिर्फ पुण्य किया तो भी आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा ना वो पुण्य एंजॉय करने के लिए। तो आप पुण्य एंजॉय करने के लिए जन्म होता है बड़ा अच्छा सा घर में, बहुत दौलत है, मतलब बहुत रिच है, आप अमीर है, सब कुछ है हमारे आपकी जिंदगी में, तो यू आर एंजॉइंग द पुण्य। फिर वो जिंदगी जीने टाइम में आपको दोबारा कर्म करना पड़ेगा, फिर भी रिएक्शंस होता है, फिर भी पुनर्जन्म लेना है, तो पुण्य भी हमको काली करना पड़ेगा। तो दीक्षा लेता है ना आप, इनिशिएशन दीक्षा के टाइम में एक यज्ञ होता है, मतलब यज्ञ में हम सब फ्रूट सब कुछ डालता है, तो तब गुरु, हमारा दीक्षा गुरु ने सब हमका हमारा पाप और पुण्य सब कुछ लेता है, मतलब नया जिंदगी है, इसलिए आपको दूसरा नया नाम मिलता है, वो आपका स्पिरिचुअल फादर बनता है। तो प्रायश्चित, राइट टाइप ऑफ प्रायश्चित, जो कुछ भी पाप हमने किया, प्रूफ क्या है कि हम लोग पाप किया है? व्हाट इज द प्रूफ? हाँ, कष्ट होता है, मतलब वी आर टेकिंग रीबर्थ अगेन एंड अगेन। पाप तो किया है इसलिए हम इधर है ना भौतिक लोग में, नहीं तो हम किधर होगा? गोलोक में होगा। तो प्रभुपाद जी ने बोला सभी इधर भौतिक लोग में सभी तो पापी है, छोटा पाप या बड़ा पाप, पापी तो पापी है। तो 84 लाख जन्म हमने पाप किया है। तो व्हाट इज द टाइप, फर्स्ट राइट टाइप ऑफ प्रायश्चिता? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण मंत्र जपना। बट 7th ऑफेंस क्या होता है होली नेम का? There are 10 offenses to the holy name. What is that 7th offense? नाम अपराध ना? नाम हाँ, तो नाम जप करने के भल में पाप करना, to do sinful activities on the strength of chanting the holy name, ये पाप होता है ना? ऐसा नहीं करना है कि मैं हरे कृष्ण मंत्र जप करेगा और मैं पाप भी करता है, नहीं, वो मैं पाप किया तो हरे कृष्ण मंत्र जप करने में वो बैलेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब पुण्य किया तो पुण्य के एक रिएक्शन होता है, पाप किया तो पाप का भी रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक पाप किया तो पुण्य किया तो वो बैलेंस हो जाएगा, दैट्स नॉट द लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा ऐसा नहीं। जस्ट सोचो, एक घर का एक बेटा को आपने मार दिया, मैंने यू किल्ड हिम, देन नेक्स्ट डे to compensate you gave 1 crore rupee to the family. Is it enough? I mean, is it equal? No, it's never equal to a life. No, तो इसलिए आप पाप किया तो भी एक रिएक्शन होता है, पुण्य किया भी रिएक्शन होता है। So every action has equal and opposite reaction. तो जो कुछ भी कर्म हम करता है उसमें रिएक्शन होता है, बट आप अकर्मा किया तो मतलब if you do devotional service कुछ रिएक्शन नहीं होता है। तो फर्स्ट बेस्ट टाइप ऑफ प्रायश्चिता is to chant the holy name of Krishna. Okay, otherwise we'll go to hellish planets and there will be lot of sufferings. ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि बेस्ट टाइप ऑफ अटॉनमेंट इज टू chant the holy name of Krishna and to surrender to Krishna. So if we do that, then अर्जुना को सिन नहीं होता है। अर्जुना तो युद्ध करता है, हाँ, सभी कौरवस को मार दिया, बट अर्जुना को सिन नहीं है ना? क्यों? उनको सिन नहीं है। Arjuna won't have sin. Why? Why Arjuna won't have any reactions? भगवान की शुद्ध भक्त, भगवान का शुद्ध भक्त है, ऐसा मतलब नहीं है कि शुद्ध भक्त कुछ भी सिंपल एक्टिविटी किया तो रिएक्शन नहीं होता है। क्यों अर्जुना युद्ध किया? यस मणि जी, भगवान की कहने आज्ञा पर। हाँ, तो he is doing for Krishna. If you do something for Krishna, if you are doing for Krishna, then उसका रिएक्शन नहीं होता है। कृष्ण ने बोला कि युद्ध करो, अर्जुना किया, और एक्चुअली सबको किसी ने मारा? अर्जुना किया नहीं, कृष्ण ने किया ना। वो यूनिवर्सल फॉर्म ने विश्व रूप में दिखाया ना, सभी कृष्ण के मुंह के अंदर जा रहे हैं, तो कृष्ण ने ही सबको मार दिया। वो कौन था उसका हेड उधर
रखा था बारबरीक। तो बारबरीक युद्ध के अंत में बारबरीक से पूछा कि कौन युद्ध लड़ा? अर्जुन लिया? नहीं, कोई युद्ध नहीं किया, सिर्फ कृष्ण ने युद्ध किया, मैंने खुद देखा। तो वो प्रूफ है कि सिर्फ भगवान ही सब कुछ करता है। तो इसलिए सिंफुल एक्टिविटी अर्जुना को नहीं है, ये हमारे लिए है कि अगर हम कुछ पाप किया है, मतलब पिछले जन्म में या कुछ पाप तो कुछ भी किया, तो वी हैव टू डू प्रायश्चिता। कौन सा प्रायश्चिता? टू चांट द होली नेम ऑफ कृष्णा। तो हरे कृष्णा महामंत्र रोज जब करना है हम, और ये करने में हमको ठीक है 10 अपराध होता है, मतलब पहला जब बच्चा मतलब चलने सीखेगा तो तब गिर जाएगा ना, बट यू हैव टू गेट अप अगेन, दोबारा उठ के वो जाता है। तो इसी तरह व्हेन वी चांट द होली नेम, अपराध तो होता है, नामा अपराध तो होता है, कोई बात नहीं, स्लोली ठीक हो जाएगा, नामा आपास में आ जाएगा, फिर शुद्ध नाम आएगा, बट वी हैव टू फॉलो द राइट प्रोसेस। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, any questions? You can put in the chat. We can end. तो आज एकादशी था, तो you all have to break at the right time tomorrow. Hare Krishna. No questions. Thank you everyone for joining. Vancha kalpatarubhasya kripasindhave Krishna Mataji, patitanam thank you, Mataji. vaishnavibhyo namo namaha kodi vaishnavinda ki jai Shri Prabhupada ki हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। Pranam Mataji.